हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी फ्रॉम सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी वीडियो टू प्रिपेयर फॉर एनएलसैट, द नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय एनएलएस बैंगलोर right from the year 2022. One of the most sought after LLB programs in the country, conducted by one of the most prestigious law schools, who started, by the way, the 5-year integrated law program, that is the BA LLB honors, in the year 1987, has started its own 3-year LLB program now, which you can appear for after graduation. It requires the passing of the NLSAT exam. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्या एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम है, कौन कौन से रिसोर्सेज कंसल्ट करने हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कितने टाइम में प्रैक्टिस करना है. सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे टू नो द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड ऑल्सो क्रैक इट. तो नाउ एनएलएस बैंगलोर का एग्जाम है, कुछ तो डिफरेंट होगा ही ना. सो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द एग्जाम एग्जैक्टली? If we talk about the demands of the exam and how to clear it, it requires from you the most level of accuracy and precision. And why is that? Why do we require accuracy and precision in this exam more than what is required in the normal exams? Is because of the high cutoff and also less number of seats available. Seats की कमी की वजह से and competition इतना ज़्यादा होने की वजह से आपके आंसर्स में accuracy और precision होना चाहिए for you to clear this exam and sit in NLS Bangalore. जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ कि इन्हें क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं एनएलसैट के बारे में, तो जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ ऑलवेज विद रिगार्ड टू एवरेज प्रिपरेशन टाइम, एग्जाम पैटर्न, टाइम लिमिट ऑफ द एग्जाम, स्ट्रैटेजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. कि मैम कितना डिफिकल्ट है एग्जाम, इतना क्या हाई कट ऑफ जाएगा कि हम प्रिपेयर कर भी पाएंगे ढंग से या नहीं कर पाएंगे, एंड ऑल्सो द एंग्जाइटी कमिंग विद इट. डोंट वरी, Don't worry, I'm here to deal with all of your questions in one video. Talking about the exam pattern of the NLSAT exam, if we talk about the duration of the exam, it is up to 150 minutes, that is 2.5 hours. In 2.5 hours, you have 150 marks in total. Part A के 75 marks and Part B के 75 marks. So basically 75 plus 75, 150. The question paper is divided into two parts, Part A, Part B. Part A is objective type and Part B is basically subjective type of questions. If we talk about the marking scheme, Part A has negative marking. It gives +1 for every correct answer, and for any incorrect answer and unanswered question, minus 0.25 is deducted. If we talk about the qualification and the evaluation of the exam, in order for your Part B to be evaluated, candidates must qualify your Part A of the exam. So basically, for your evaluation of Part B, Part A must be qualified by you. Additionally, the required percentage, which is cumulative in number, for the general and economically weaker sections, it is more than 75 percentile, and for the SC, ST, OBC, the non-creamy layer, and PWD, more than 40 percentile is required. So if we come to know that the percentile is generally greater for the general category students, so you have to work hard accordingly. Talking about the exam structure, NSAT has a very unique structure. It is a perfect blend of objective and subjective type of questions. So basically, both objective and subjective type of question format is asked. Question paper is divided into two parts. Part A, 75 marks, and the type of questions are passage based MCQs. And Part B is also of 75 marks. It is subjective type. It includes a question of essay writing also. Basically, in the second part, you have to write answers. If we talk about Part A of the exams, there are passage type questions with MCQs, and these are divided into 25 questions each. So the first part belongs to the English comprehension, which contains 25 questions of 25 marks. The second part consists of current affairs, 25 questions with 25 marks, and third is critical reasoning, 25 questions by 25 marks. अगर हम बात करेंगे पार्ट बी ऑफ द एग्जाम को, ये एक सब्जेक्टिव सेक्शन है. इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, basically 6 questions of 10 marks each, and the second question is of analytical ability. It is only a one question. It consists of 15 marks. Basically here a topic will be given to you and you have to frame arguments. You have to write a structured essay in the proper form where your ability to write will be tested. This section, however, does not contain any negative marking. No negative marking is there in this section. The only negative marking is present in Part A of the exam. Coming to the what should be the effective strategy to prepare for NLSAT, we will go in a very structured approach.
First of all, familiarize yourself with the syllabus. Go through the syllabus, see what are all are the topics there, what kind of questions that can come. And for this purpose, you have to look for पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. वहां पे आपको एक बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड ऑल्सो एनालिस्ट ऑल्सो रिलीजेस सैम्पल पेपर्स जो कि उस ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की तरह आएंगे कि फॉर्मेट क्या होगा आपके एग्जाम का. Familiarize yourself with the syllabus. Create a structured study plan. If you are preparing from 6-7 months, create a structured study plan कि हाँ इन 6 months में मुझे कैसे कैसे क्या क्या prepare करना है. Go through all the subjects, go through all the topics and divide your time accordingly. Use reliable reference materials. Books and online sources. Books are generally considered the reliable resources. However, while browsing through the online resources, do check out reliable information and also correct information to know that yes, you are studying from the good resource which is consulted by everyone. Make detailed notes. You can make handwritten notes, digital notes, whichever you like. If you want to study smartly, prepare for digital notes. If you are a person जिसको handwritten notes ज़्यादा easy लगते हैं, you can prepare handwritten notes because ये तुम्हारी लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत काम आएगा. अगर तुम्हें लास्ट में गो थ्रू जाना है किसी भी टॉपिक में कि हाँ मैंने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, तो वो नोट्स खोल के तुम एकदम देख सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था एंड इसमें ये इंक्लूड करूंगा. इफ यू टॉक अबाउट रिविजन सेशंस, अभी रिविजन ना बहुत जरूरी होती है. वट वी डू इज वी स्टडी बट वी डोंट रिवाइज इट. So basically, if you are only studying and you're not revising it, you will forget what you have studied. So along with studying, you need to practice and also you need to revise and then you need to practice again and study again. So this is all the loop you have to go through. Then only इतना difficult exam अच्छे से पास कर पाओगे. तो then only इस एग्जाम को एक बहुत ही अच्छे वे में अप्रोच कर पाओगे. प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट. अब सिंस मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी तो देख ही सकते हो ना, वो भी तो सेम ही है. एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो वो क्वेश्चंस आए थे. अब बेसिकली मैं हमेशा मॉक टेस्ट के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हें एक एग्जाम फील देते हैं. वहाँ पे एक टाइम बार्ड होता है. यू नो कि तुम्हारे पास इतना टाइम है और तुम्हें इतने टाइम में ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं. ऑल्सो मॉक टेस्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी तुम्हें बताते हैं कि ये पैटर्न है क्वेश्चंस का और इनको तुम ऐसे अप्रोच कर सकते हो. तो मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करो ही करो बिकॉज इट्स बीन ओनली 2 years सिंस एनएलसैट इज कंडक्टेड. बट जो भी तुम्हारी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सोर्सेज है जिनसे तुम कंसल्ट करते हो, कोचिंग क्लासेस हैं, अगर वो तुम्हें ऑनलाइन सोर्सेज दे रहे हैं जिससे तुम्हें मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो प्लीज डू अटेम्प्ट दोज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to get the feel of the exam and also to improve your reading ability, to see what type of questions can be asked, pattern क्या है questions का. Ideal preparation time. If we talk about the ideal preparation time for NLSAT, the ideal preparation time is 6 to 7 months. अब 6 to 7 months क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम इंग्लिश में अच्छे हो बट योर लॉजिकल रीजनिंग इज अ बिट वीक. सो वट यू कैन डू इज दिस टाइम फ्रेम विल हेल्प यू टू इम्प्रूव ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. ये टाइम फ्रेम तुम्हें जो तुम्हारे वीक एरियाज है उनमें वर्क करने के लिए हेल्प करेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज कंडक्ट रिविजन सेशंस ऑफ योर इंग्लिश पार्ट एंड वर्क ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग. प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर पाओगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे और इनको रिवाइज भी कर पाओगे. सो इससे बेटर क्या ही हो सकता है. सो 6 to 7 months लेके चलो कि तुम इतना टाइम तो डेडिकेट करोगे अपने इस एग्जाम के लिए. इफ आई टॉक अबाउट पार्ट ए विच कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, आपका लीगल, आपके करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो योर क्रिटिकल रीजनिंग. पार्ट ए में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. तो आपके जो पैसेजेस हैं वो 450 to 500 वर्ड्स के होंगे और उनके बेसिस पे ही आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. सो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू गिव ड्यूरिंग द एग्जाम टू पार्ट ए? जो पार्ट ए है एग्जाम का वो तुम्हारा आइडियली 60 to 70 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो बेसिकली तुम्हें सिर्फ 1 hour देना है पार्ट ए को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि पार्ट बी सब्जेक्टिव है तो वो टाइम लेगा. पर आइडियल टाइम 60 minutes डिवोटेड टू पार्ट ए. ऑल्सो मार्किंग स्कीम तो हमें पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग है पार्ट ए में फॉर ईच इनकरेक्ट एंड unanswered question. If we talk about the English comprehension part, which is the first part, it consists of 25 questions जो 25 marks के हैं. तो इनमें क्या क्या आ सकता है? Comprehension passages, obviously ये तो आएंगे ही, passages based हैं. तुम्हारे ग्रामर आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, वर्ड्स के मीनिंग्स, जो पैसेजेस में वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स, कंटेक्चुअल आ सकते हैं, जनरल आ सकते हैं कि हाँ ये वर्ड है इस कंटेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, और ऑल्सो जनरल में इसका क्या मीनिंग है. वोकैबुलरी,
phrases, idioms and proverbs. तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो एक इंग्लिश ग्रामर में आती हैं वो सब चीज़ें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आराम से आ सकती हैं. अगर हम सोर्सेज की बात करें कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को कैसे प्रैक्टिस करें, सो मैं रिकमेंड करूंगी ये 2-3 बुक्स हैं. इनमें से तुम कोई भी एक ले सकते हो, विच इज ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल, बाय SP बख्शी और रेनन मार्टिन. ये जो है तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस देगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनके आंसर्स कैसे होंगे, ठीक है. तो जो भी प्रोवर्ब्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, फ्रेजेस हैं या फिर मीनिंग्स हैं, ये सब चीजें इन बुक्स में कवर हो जाएंगी. apart from that please refer to previous year question papers to know कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश में ही, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. और अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड जो है इंग्लिश में थोड़ी सी स्लो है, तो इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा वीक है, तो ट्राई करो कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको तुम रोज पढ़ो. उससे क्या होएगा, वट एवर यू आर रीडिंग ना, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड ऑन इट. एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि हाँ मेरे को इतना टाइम लगता है इस पैसेज को पढ़ने में और कितना टाइम लगेगा मुझे उस पैसेज को डिटरमाइन करके आंसर्स देने में. सो रीड न्यूज़पेपर्स डेली. करंट अफेयर्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स. करंट अफेयर्स में क्या क्या आ सकता है, आपका स्टैटिक आ सकता है और आपका करंट आ सकता है. स्टैटिक में करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एनवायरमेंट, ऑथर्स एंड नॉमिनेशंस, आर्ट्स एंड कल्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीगल स्फेयर. लीगल स्फेयर में तुम्हें बेसिक्स पता होने चाहिए कि हाँ अभी क्या चल रहा है या 1-2 साल में क्या हुआ है. What are the important events which have taken place? Any important amendment that has taken place? Any landmark Supreme Court judgment जो कि significance में बहुत है, बहुत ज़्यादा चल रही है. Not only famous but also which involves a substantial question of law preferably. तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें लीगल स्फेयर में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड ऑल्सो करंट या जीके स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव बुक्स, करंट अफेयर्स, ऑनलाइन सोर्सेज, डाइजेस्ट. सो इन सबको रेफर करके तुम एक एनालिसिस बना सकते हो, एक कंपेडियम बना सकते हो कि हाँ तुम्हें करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स प्रायोरिटी में देखने हैं. अगर मैं आइडियल सोर्सेज की बात करूं करंट अफेयर्स के लिए, रेफर टू मंथली कंपेडियम्स. बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज हैं जैसे मनुपात्रा है, वो तुम्हें मंथली कंपेडियम्स प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के. रिलायबल सोर्सेज लाइक जीके टुडे भी तुम्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि करंट में क्या चल रहा है. अब जीके टुडे की जो वेबसाइट है वो रोज 5 क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स पोस्ट करती है. सो यू कैन गो टू दैट साइट, सॉल्व दिस क्वेश्चंस टू नो कि हाँ करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस है, और अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी उसमें. सो प्लीज डू इट. न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स पढ़ो. एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तुम्हारी वोकैबुलरी भी बढ़ाते हैं, ठीक है. सेकेंडली तुम्हारी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करते हैं. एंड तीसरी तुम्हारे एनालिसिस को बढ़ाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं. एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट बी ऑफ द एग्जाम. पार्ट बी ऑफ द एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू फॉलो अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि हाँ मैं आंसर कैसे लिखूंगा. सो इसके लिए न्यूज़पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि एडिटोरियल्स भी बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं. ऑल्सो अगर तुम्हें एक प्रॉपर करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए तो मनोरमा ईयरबुक type of magazines are very important. If you want to refer to them, you can refer to them for the past 1 year current affairs. Talking about the critical reasoning part again, 25 questions, 25 marks, ठीक है. So इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं logical puzzles, numerical reasoning, legal maxims, legal concepts. Logical puzzles, numerical reasoning, legal maxims, legal concepts, assumptions and conclusions, seating arrangements and लैंडमार्क केस लॉज. क्रिटिकल रीजनिंग तुम्हारे इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इसमें क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्वेश्चंस जो आएंगे लीगल कंसेप्ट्स आएंगे जो कि बेसिकली एजम्पशंस और कंक्लूजन्स पे बेस्ड होंगे, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू रेफर टू. सो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए द फर्स्ट सोर्स ऑफ रेफरेंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये पैटर्न है या टाइप है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड ऑल्सो डू अपेयर फॉर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट बहुत ही प्लेथोरा ऑफ तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देते हैं जो तुम्हारी प्रैक्टिस को बहुत ही इफेक्टिव कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अदर देन दैट यू कैन
यूज द बुक्स लाइक एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे, काफी अच्छी बुक है. ऑल्सो मास्टर क्रिटिकल थिंकिंग बाय विलियम हेंडरसन. एंड ऑब्वियसली थर्ड, रीजनिंग क्वेश्चंस. प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो. क्रिटिकल रीजनिंग को एक्सेल करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. तुम बुक्स पढ़ोगे, रीड करोगे, रीड करने से कुछ नहीं होगा. ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी होगी. बिकॉज तुम रीड करोगे, तुम एज्यूम करोगे, तुम कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और तुम आंसर मार्क करोगे. मॉक टेस्ट इस चीज में बहुत हेल्प करते हैं. सो प्रैक्टिस फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, दैट्स ऑल आई विल सजेस्ट यू. अगर हम पार्ट बी के बारे में बात करें, पार्ट बी इज अ सब्जेक्टिव सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. 60 मार्क्स का पार्ट है ये. 6 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के. एंड द सेकेंड पार्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी. एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का ऑन अ करंट और सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक. इफ वी टॉक अबाउट द लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पार्ट, 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है? तुम्हें प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है. इट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. तुम्हें उस पे एक 300 to 350 वर्ड्स का आंसर लिखना है. एंड ऑल्सो जो तुम्हारा पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, वो कोई लीगल प्रोपोजिशन हो सकता है, कोई लीगल मैक्सिम हो सकती है, कोई लैंडमार्क केस लॉ हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस हो सकते हैं. दो इसमें लिखा हुआ है कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, बट तुम्हें बेसिक्स पता होने चाहिए. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, वो पढ़ के जाओ. लैंडमार्क केस लॉ जब वो थोड़ा पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में ये 4 चीजें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं. एंड ऑल्सो फॉर यू टू राइट एन आंसर, फॉर यू टू राइट एन आंसर, follow this structure always. This is very effective and this is also taught in law school in general, कि तुम एक आंसर को कैसे फ्रेम करते हो. सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है. सेकंड हमारा फैक्ट्स आ जाता है, जो कि लीगल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया हुआ है. तीसरा तुम्हारे इश्यूज आ जाते हैं. चौथा तुम्हारे रेफरेंसेस और रेलिवेंट प्रोविजंस आ जाते हैं. पांचवा तुम्हारी एनालिसिस क्या है और कंक्लूजन में क्या होगा. सो बेसिकली जब तुम आंसर्स लिखते हो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, तो हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना. मतलब अगर कोई राइट साइड है, कोई लेफ्ट साइड है, ठीक है, तुम्हें पता है कि राइट साइड का जो थोड़ा सा वेट है उनके साइड का, वो भारी है, बट ऑल्सो टू उस चीज को बैलेंस करके लिखना ही तुम्हारा काम है. टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच. Balanced approach will help you anywhere. When you take a balanced approach, now which is not biased towards the side, the person who is checking the question paper will see कि yes, this person did not choose the very easy route. He took a very balanced route to equalize both the sides, and that's what is important always. So आंसर राइटिंग के लिए तुम किसी भी ऑनलाइन सोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे आंसर राइटिंग सिखाते हैं, ठीक है. अगर तुम खुद करना चाहते हो, अगर सेल्फ करना चाहते हो, तो कोई भी प्रैक्टिस बुक्स निकाल दो जहाँ पे आंसर राइटिंग सिखाई जाती है. बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स हैं जो कि प्रोवाइडेड है ऑनलाइन. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो तुम्हें आंसर राइटिंग के बेस बताते हैं. बट किसी भी आंसर राइटिंग को सीखने के लिए ये एक बहुत ही नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो तो करना ही चाहिए, ठीक है. सो टेक दिस अप्रोच ऑलवेज. When I talked about reference for legal reasoning, previous year question papers, monthly digest of case laws. केस लॉज जो भी 1 साल के हैं, 1-2 साल के हैं, उनके मंथली डाइजेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं. तो इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हैं वो मार्क करके, जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन रेफर किया गया है, कोई लैंडमार्क जजमेंट है, उनको तुम रेफर कर सकते हो. राइट योर आंसर्स विद प्रिसिशन, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर देम. स्ट्रक्चर जो है ना आंसर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिसाइज लिखो अपने आंसर को. डोंट गो थ्रू अननेसेसरी थिंग्स. जस्ट बी प्रिसाइज इन व्हाट यू वांट टू कन्वे टू द person who is checking the paper कि हाँ मेरा ये अप्रोच है and this is what I take from this problem. Also legal maxims. हमने पैटर्न के बारे में बात करी है कि लीगल मैग्जिम्स आती हैं. लीगल मैग्जिम्स सिर्फ तुम एक्सेल कर सकते हो अगर तुम उनको प्रैक्टिस और रिवाइज करो और फिर रिवाइज करो अकॉर्डिंगली. सो शेड्यूल रिविजन सेशंस. अगेन आई एम सेइंग शेड्यूल रिविजन सेशंस. जो तुम पढ़ रहे हो उनको रिवाइज करते जाओ मंथली, वीकली, क्योंकि इससे क्या होएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम्हारी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी. कई लोगों की रिटेनिंग पावर नहीं होती, बल्कि वो अच्छा पढ़ लेते हैं. तो उसके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, अपना टेस्ट लो कि हाँ ये, या मॉक टेस्ट में अपेयर करो एंड जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अगर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो तुम यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किया जाते हैं. एंड ऑल्सो
तुम बेयर एक्ट्स भी रीड कर सकते हो. सो वॉच यूट्यूब वीडियोज, रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज या फिर रीड बेयर एक्ट्स. अगर हम एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें, जो कि एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि वो एक लीगल या करंट टॉपिक पे होता है. कोई भी सोशो पॉलिटिकल टॉपिक है जो कि इन रेलिवेंस है, इन सिग्निफिकेंस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है. रिक्वायरमेंट ये होती है कि तुम्हें ऐसे लिखना है, वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स. सो बेसिकली ये तुम्हारा बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है इफ देयर इज अ टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट पॉक्सो के ऊपर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर कोई ऐसे जजमेंट आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, या कोई भी कंटेम्प्रेरी इशू है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट डिलिमिटेशन इंडिया में, ठीक है, उसके ऊपर लिखना है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको तुम स्ट्रक्चर कर सकते हो. ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है अगर तुम बहुत अच्छे से उसको लिखोगे, उसे अटेम्प्ट करोगे. सो इंट्रोडक्शन, अगेन अगर मैं बेसिक अप्रोच की बात करूं, जो कि मैंने पहले भी बताई है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर का, आपका होता है इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, इश्यूज, रेफरेंस, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तुम हर आंसर के लिए फॉलो करोगे ना, तो तुम अपने माइंड में भी क्लियर होंगे कि हाँ ये आंसर है, मेरे को लिखना है, इस तरीके से लिखूंगा. खुद भी क्लैरिटी होगी, सामने वाले को भी क्लैरिटी होगी. अगर तुम सब चीजें मिक्स कर दोगे ना, तो सामने वाला तुम्हारे नंबर काट देगा. टिप, एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा टाइम लिमिट सेट करके आंसर लिखो. अगर तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ तुमने पढ़ लिया कि हाँ ऐसे आंसर लिखते हैं, एक टॉपिक उठाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक टाइम लिमिट सेट करो कि हाँ इस टाइम लिमिट में मैं ये 500 वर्ड्स का आंसर लिख दूंगा. इससे क्या होएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी. सो जितना प्रैक्टिस हो सकती है उतना करो. रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, लास्ट 2 साल के, देखो कि किस टाइप के टॉपिक्स आंसर राइटिंग में पूछे गए थे. ये वाले टॉपिक से तुम्हें आइडिया हो जाएगा. यू कैन पिक एंड चूज कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ के लिख के अटेम्प्ट कर सकता हूँ. व्हाट इज द मंत्रा फॉर दिस एग्जाम? स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिवाइज. बेसिकली तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, उसे रिवाइज करना है, फिर से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है. सिंपल है, 6-7 मंथ्स का टाइम है. जस्ट प्रिपेयर करो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, because this exam has less number of seats and it requires high accuracy and precision. तो precision और accuracy के लिए एक ही चीज हेल्प करती है, वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस एक हेल्प करती है एंड ऑल्सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली तुम एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. NLSAT के लिए ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी. इफ यू फॉलो इट, trust me, you'll be able to crack the exam. Take care, all the best. And for more such videos from St. Peter's Law Academy, like, share and subscribe, and do let me down in the comment below if I can improve in any way for more such videos. Thank you so much.